Once again, a great greetings to you all students. I am here to discuss chapter 3, class 11th, that is plant kingdom, right? In this chapter, we are going to discuss about different types of plants which are present in our world, right? Here, we are going to first discuss about different types of plant classification systems like artificial system, natural system, phylogenetic system and modern system of classification. In this chapter we are also going to discuss about different types of plants which are present under plant kingdom, which are algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperm, and in the last of the chapter we are going to discuss about the life cycle, plant life cycle and alternation of generation in plant kingdom, right? So let us start first what NCERT says, right? In the previous chapter we looked at the broad classification of living organism under the system proposed by Whittaker, wherein he suggested the 5 kingdom classification like Monera, Protista, fungi, plantae and Animalia, right? Before in all previous chapters we have discussed about different types of classification systems of overall organism, in which we finally selected Whittaker classification system, which classify every organism into total 5 classification kingdom systems, which are first Monera, which include only prokaryotes, then Protista, which includes eukaryotic unicellular organisms, then fungi, which includes organisms like plant but not the plants, right? Because they are eukaryotic, they have cell wall, they are multicellular, but they do not have chlorophyll like pigment. They are not autotrophic, they are saprotrophic, they have saprotrophic mode of nutrition, right? So fungi, and the next one is kingdom Plantae, which we are going to discuss in this chapter, and the last one is kingdom Animalia, which we will further discuss, right? So in this chapter we are going to discuss about different different systems of classification of plant kingdom, and then what are those plants, right? So we must stress here that our understanding of plant kingdom has changed over time. जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे टेक्निकली हम गुड होते गए, जैसे जैसे डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप्स आते गए, डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम बढ़ता गया, हमारा नॉलेज बढ़ता गया, उस तरह से हम लोगों ने प्लांट के भी लाइफ को बहुत ज़्यादा अलग तरह से देखना शुरू किया. Fungi and members of Monera and Protista having cell wall have now been excluded from Plantae, though earlier classification put them in the same kingdom. मतलब जो पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम था स्टूडेंट, उसमें प्लांट किंगडम के अंदर ही मोनेरा के भी मेंबर्स को डाला गया था, प्रोटेस्टेंट्स को भी डाला गया था और फंजाई को भी डाला गया था, क्योंकि इन तीनों मेंबर्स, इन तीनों किंगडम के मेंबर्स के पास सेल वॉल होता है. दैट्स व्हाई ऑल दीज आर पुट टुगेदर इनटू द प्लांट किंगडम. बट जैसे जैसे टूल्स एंड टेक्निक में डेवलपमेंट आता गया, इन सभी को अलग अलग किंगडम्स में डाला गया. So the cyanobacteria, that is blue-green algae, cyanobacteria, that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore. पहले blue-green algae यानी cyanobacteria को भी blue-green algae यानी alga के किंगडम में ही डाला गया था, प्लांट के ही किंगडम में. बट जैसे हमारा नॉलेज बढ़ा, जैसे जैसे हमने उसको एनालाइज किया और ज़्यादा उनके कैरेक्टर्स को रीड किया, तो उस तरह से फिर हमने उसे मोनेरा किंगडम में प्लेस किया. In this chapter we will describe Plantae under algae, bryophyte, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm. तो इस चैप्टर में हम लोग स्टूडेंट प्लांट किंगडम को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर में कौन कौन सा होगा. तो सबसे पहले आएगा algae,
which we also call Thallophyta. Then we discuss about Bryophyta. Then we move to Pteridophyta, and then completely terrestrial plants that are Gymnosperms and Angiosperm, right? So we move next. Let us also look at classification within Angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification systems. अब एंजियोस्पर्म में जब हम जाएंगे, यानी कि जो लास्ट है हमारा जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में जाने के बाद उन एंजियोस्पर्म को कई तरह से क्लासिफाई किया गया था. इसी को हम कहते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम या एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन सिस्टम, राइट. तो इस एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने क्या क्या हमें देखना है. तो द अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number, shapes of leaves, etc. ठीक है. तो जो सबसे पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था स्टूडेंट, यानी कि ये जो हमारा प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये एक्चुअली में एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन सिस्टम है. तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारा प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो एक्चुअली एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन सिस्टम है. दैट इज एंजियोस्पर्म जो होते हैं, जो कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, प्लांट कैटेगरी के मेंबर्स होते हैं, उनमें कई तरह के प्लांट प्रेजेंट हैं और उनमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं. तो हम सबको सिर्फ एक ही कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जिसको कैरोलस लीनियस ने दिया था, वो था आर्टिफिशियल सिस्टम, राइट. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने देखा है कि वो मोस्टली किसको चुनते हैं, तो वो मोस्टली चुनते हैं सुपरफिशियल कैरेक्टर्स को, यानी ऊपर जहाँ पर जो कैरेक्टर है जिसे हम ऊपर से ही देख सकते हैं, जैसे कि मोस्टली मॉर्फोलॉजी, उनका हैबिट, कलर, स्ट्रक्चर ऑफ लीव, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम एंड रेस्ट अदर फ्यू फ्लावर कैरेक्टर, राइट. तो इसे चूंकि सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को इसमें चूज किया गया मोस्टली, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम नाम डाला गया, क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. प्लांट की लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर कोई फैक्टर उनके लाइफ को प्रभावित करते हैं स्टूडेंट, तो वो मोस्टली करता है इन्वायरमेंट, राइट. तो इन्वायरमेंट के कारण उनके इवन लीव्स के जो शेप होते हैं, लीफ का जो साइज होता है वो भी चेंज हो जाता है. विंटर में कुछ और साइज होगा, समर में कुछ और साइज होगा. जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी होगी वहाँ पे लीव्स का कुछ और शेप दिखने को मिलेगा, और जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा होगा, वाटर लॉगिंग होगा, वहाँ पे भी लीफ के शेप एंड साइज में एंड नंबर्स में इफेक्ट दिखाई देता है स्टूडेंट. तो ये मोस्टली वेजिटेटिव कैरेक्टर था और ये बदलता रहता था. यही इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का मोस्ट ड्रॉबैक था, राइट. मेजर ड्रॉबैक हुआ इसका ये इस सिस्टम का कि इन्होंने मोस्टली वेजिटेटिव कैरेक्टर को चूज किया, जिस वजह से इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हुआ, राइट. सेकेंड क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या चूज किया इन लोगों ने, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को चूज किया गया एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करने के लिए. नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या कहता है स्टूडेंट, तो पहले थोड़ा और हम देख लें कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, कि दे वेयर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंडोएशियम स्ट्रक्चर. दिस सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस. वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड एंड्रोएशियम के कैरेक्टर को यहाँ पे चूज किया गया था. तो क्या चूज किया गया यहाँ पे, मोस्टली मतलब कि सुपरफिशियल कैरेक्टर को यहाँ पे चूज किया गया, जिसमें कि क्या था सुपरफिशियल कैरेक्टर्स, तो वो सुपरफिशियल कैरेक्टर्स थे हैबिट एंड हैबिटेट. सेकंड था कलर, शेप, साइज and number of leaves.
थर्ड में चूज किया गया स्टूडेंट यहाँ पे ऑल वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को चूज किया गया यहाँ पर, और उसमें भी मोस्टली किसको चूज किया गया, एंड्रोएशियम को, एंड्रोएशियम के साइज को यहाँ पे चूज किया गया था मेनली, और ये किसने दिया था, तो कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है। दिस सिस्टम वॉज आर्टिफिशियल सिस्टम, they separated the closely related species since they were based on a few character। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है स्टूडेंट, वो मेनली जब प्लांट्स को क्लासिफाई करता है इन सब चीज़ों के बेसिस पे, तो कुछ एक सही था पर बहुत सारा डिफरेंसेस भी पाया गया, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया क्लासिफिकेशन के लिए, बहुत ही कम कैरेक्टर्स को यहाँ पे चूज किया गया था, यानी कि वेरी फ्यू कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड, ठीक है। चलिए वी विल मूव फॉरवर्ड। Also, the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. तो इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को दोनों को इक्वल वेटेज दिया। क्या किया इन्होंने जो गलती की वो क्या था, वो गलती थी इनकी कि इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर को इक्वल कर दिया सेक्सुअल कैरेक्टर्स के साथ, ठीक है। तो जो इनका ड्रॉबैक निकला, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं वो इन्वायरमेंट के साथ बदल भी जाते हैं, लाइक नंबर, साइज एंड शेप ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, ऑल्सो फ्लावरिंग, the timing of flowering also changes according to the environment, right? तो vegetative and sexual character को equal weightage देना इनकी गलती थी। As against this, अब इसके बाद किसका आया, तो सेकेंड नंबर पे आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको बेंथम एंड हुकर ने दिया था, राइट। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या कहता है, they were separated which were based on natural affinities among the organism and considered not only external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry of the plant, right? This is natural classification system given by Bentham and Hooker. According to this classification system, plants were not only classified according to their vegetative characters, but they are classified based on their internal structure, right? तो ये जो नेचुरल सिस्टम है ये मॉर्फोलॉजी को तो इंक्लूड करता ही है, साथ ही साथ एनाटॉमी यानी कि इंटरनल सिस्टम के स्ट्रक्चर को भी ये इंक्लूड करता है, फिर उससे भी ज़्यादा डीप अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि एनाटॉमी में भी एकदम डीप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को ये चूज करके और तब सेपरेशन करता है प्लांट्स के बीच में। नेक्स्ट है एम्ब्रायोलॉजी, मीन्स टू से दैट कि आफ्टर sexual reproduction, the developmental process of the embryo, how it take place and what is the actual structure of embryo and the number of embryo development, how embryos are developing inside the ovule, right? तो इन्होंने इन सब चीज़ों को भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया, यानी कि एम्ब्रायो का क्या पोजीशन है, एम्ब्रायो के कितने नंबर्स हैं, किस प्लांट में किस तरह से एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है, मीन्स टू से इन्होंने एम्ब्रायोलॉजी को भी पूरा का पूरा कंसीडर किया नेचुरल सिस्टम में। नेक्स्ट इसके बाद इन्होंने फाइटोकेमिस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा वेटेज दिया स्टूडेंट। फाइटोकेमिस्ट्री मीन्स द केमिकल प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट, मीन्स द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ द प्लांट, इस चीज को भी इन्होंने काफी ज्यादा वेटेज दिया है क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो ये बेंथम एंड हुकर का नेचुरल सिस्टम है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल रहा।
Such a classification of flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. Bentham and Hooker, right? तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम भी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा। आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट में आता है एट प्रेजेंट। तो इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो मतलब कि इसने मेनली मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू, इन सब चीज़ों को इन्होंने प्रायोरिटी दिया, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पे भी मिसिंग है, जो दो प्लांट के बीच में एक एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप को इन्होंने भी मिस किया यहाँ पे। तो उस चीज़ को फुलफिल किया है इसलिए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इंग्लर एंड प्रॉन्टल ने इसको लाइमलाइट में लाया था, और उसके बाद हचिंसन ने और बहुत ज़्यादा डिफरेंट साइंटिस्ट ने भी इसको फॉलो किया। इस सिस्टम ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम को तो ध्यान में रखा ही, मीन्स इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर्स, हैबिट, हैबिटेट, कलर वगैरह वगैरह जो भी थे उन सबको तो इंक्लूड किया ही, साथ इन्होंने मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री के साथ इन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया। यानी कि इन्होंने मेनली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की जो स्टडी होती है, फॉसिल स्टडी, और इन सब को रीड करते हुए इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को लाया, जो कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है स्टूडेंट। और ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, इसको बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट सब ने फॉलो किया है। तो मेनली इसको दिया था इंग्लर एंड प्रॉन्टल ने, और सिक्स एमिनेंट बॉटनिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है फाइलोजेनेटिक सिस्टम में। वो हैं हचिंसन, तख्ताजैन, क्रॉन्क्विस्ट, डेक्रेगन एंड थॉर्न, राइट। तो इन सब ने इसमें अपना बहुत ज़्यादा अपने स्टडी का बहुत ज़्यादा इस चीज़ को टाइम दिया है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को। तो ये लोग इसके सपोर्टर रहे हैं, और अभी भी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ही सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है, बिकॉज इट इंक्लूड्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, राइट। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के कारण क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आता है, दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। ये बताता है कि जो अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट अगर एक ग्रुप में हैं, तो निश्चित ही इनके जो एंसेस्टर्स होंगे, इनका जो भी पूर्वज होगा वो सेम इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स रखता होगा। यानी इवोल्यूशन के क्रम में ये सिमिलर एंसेस्टर से डेवलप किए हैं, इसी वजह से ये सेम ग्रुप में हैं। तो यही फायदा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का। इसके बाद आता है स्टूडेंट मॉडर्न सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम तब ध्यान में आता है, मॉडर्न सिस्टम को तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड नहीं होगा। मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट का इवोल्यूशनरी सीक्वेंस खोज लिया गया हो, हर एक प्लांट का इवोल्यूशन और फॉसिल रिकॉर्ड मिल गया हो, नहीं मिलता है। तो जब वो नहीं मिलेगा तब क्या होगा, तब मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम को काम में लाया गया। तो ये क्या है मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम? तो आपके एनसीईआरटी ने 3 टाइप्स के मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंक्लूड किया है आपके सिलेबस में। वो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, देन साइटोटैक्सोनॉमी, एंड द थर्ड वन इज केमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, व्हाट इट सेज, these become more important when there is no supporting fossil evidence। जब यहाँ पे कोई फॉसिल एविडेंस नहीं है तब ये मॉडर्न सिस्टम जो है वो यूज में आता है। वो क्या है? पहला है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होता क्या है? द कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय रॉबर्ट आर सोकाल एंड पीटर एच ए स्नीथ in 1963
and later elaborated by few other scientists, right? Numerical taxonomy, which is now easily carried out using computers, is based on all observable characters. अब नाम से ही स्पष्ट है स्टूडेंट कि ये है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, मतलब कि ये कुछ तो भी मैथमेटिक्स होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैथ्स को यूज करता होगा, ठीक है, मैथ्स, साथ ही साथ ये कंप्यूटर को यूज करता होगा, राइट। तो ये जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है वो डाटा बेस्ड टैक्सोनॉमी होता है, मतलब कि इस टैक्सोनॉमी में हम बायोलॉजी के साथ साथ, ठीक है, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर को भी ऐड करते हैं, मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक्स करते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। तो वो एक कंप्यूटर में एक तरह का सॉफ्टवेयर वहाँ पे बन जाता है, जो हमें अगर एक क्लिक करेंगे तो हमें उसका पूरा का पूरा डाटा मिल जाएगा कि कितने कैरेक्टर्स और कौन कौन से कैरेक्टर्स इस प्लांट में हैं, और अगर ये कैरेक्टर इस प्लांट में है तो ये किस ग्रुप को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर, और तब हम उस क्लासिफिकेशन सिस्टम में उस चीज़ का हेल्प लेते हैं और उसको हम रीड करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। पहले हम इंफॉर्मेशन फीड करते हैं और तब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, और तब हमें पता चलता है कि ये प्लांट किस ग्रुप को बिलोंग करता है, राइट। तो ये है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो इसमें क्या होता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में कि which is now easily carried out using computer is based on all observable characters. जितने भी कैरेक्टर्स हम देखते हैं उन सभी को हम कंप्यूटर में फीड करते हैं। नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल कैरेक्टर्स। जितने कैरेक्टर होंगे उनकी एक नंबरिंग होगी और उनको एक कोड मिलेगा। तो कोड की वजह से हमें उतने लंबे कैरेक्टर को रीड करने की ज़रूरत नहीं, हम बस उसको कोड से याद रखेंगे, समझ जाएंगे कि ये इस कैरेक्टर की बात कर रहा है। एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड, और तब उसके डाटा को पूरा प्रोसेस किया जाता है, रीड किया जाता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन एक जगह पे गैदर होता है, ह्यूज इंफॉर्मेशन, इवन 15,000 इंफॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्लांट कैन बी फीडेड इनटू दिस, सो इट विल गिव यू अ लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ characters and we can classify it into a proper group, into a exact group. There should be very less chance of error. There is no chance of error, right? The next, in this way each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered. तो इस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की हेल्प से हम एक बार में बहुत सारे कैरेक्टर्स को रीड कर सकते हैं कंप्यूटर की मदद से, और उस कंप्यूटर के डाटा में हम मैथ्स और इनका हेल्प लेकर के, बायोलॉजी के हेल्प से हम प्लांट्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स को उसमें डाल के फीड करके उनको कोड देते हैं, नंबर देते हैं, और उसी चीज़ को हम जब हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है, जानकारी लेने की ज़रूरत है, तो हम बस उसके इंफॉर्मेशन को उसमें डालते हैं और हमारे पास उस प्लांट का पूरा खाका मिल जाता है। जितने भी कैरेक्टर्स अभी तक उसमें डिस्कवर किए गए होंगे वो सारे कैरेक्टर्स कोड के साथ वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंड हम तब इसको एनालाइज ईजिली कर सकते हैं कि ये किस ग्रुप में जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज वेरी यूजफुल। इट इज मेनली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब ओवरऑल जितने भी कैरेक्टर्स इन सभी सिस्टम्स में लिए गए हैं उन सब कैरेक्टर को कंप्यूटर की मदद से हम रीड करते हैं, हमारे पास एक जगह पे इंफॉर्मेशन रहती है, कोडेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स cytotaxonomy. The word represent cyto means cyto is the word which represents cell. Cyto means cell, cellular,
and taxonomy means based on cellular characters. तो साइटोटैक्सोनॉमी जो है कंप्लीटली बेस्ड है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के स्ट्रक्चर के बारे में. जब हम किसी सेल के एक एक फीचर और उसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्रोमोजोम के नंबर, उसके बिहेवियर, उसके शेप, साइज, स्ट्रक्चर, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब हम एनालाइज करते हैं, देन वी आर स्टडी अबाउट साइटोटैक्सोनॉमी ऑफ दैट प्लांट. तो ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के भी अंदर का चीज़ है. मतलब ये थोड़ा और डीप साइंस हो गया. मतलब ये जैसे जैसे टेक्निक्स डेवलप होती गई, स्टूडेंट जैसे जैसे हम टेक्निकली गुड होते गए, वैसे वैसे हमने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी और तगड़ा किया. तो फाइनली हम पहुंचे साइटोटैक्सोनॉमी पे. साइटोटैक्सोनॉमी मीन्स सेल्यूलर टैक्सोनॉमी. वी आर रीडिंग अबाउट द कैरेक्टर्स present inside the cell. So who proposed cytotaxonomy? The nomenclature used to describe the chromosome morphology was the one proposed by Levin et al. Cytotaxonomy that is based on cytological informations like chromosome number, structure, behavior. राइट, बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर मीन्स क्रोमोजोम का भाई क्या शेप है, ये मेटासेंट्रिक है या एसेंट्रिक है या टेलोसेंट्रिक है या एक्रोसेंट्रिक है, क्या है उसका क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट में व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ DNA, what is the amount of histone proteins present inside it, what is the amount of heterochromatin and also euchromatin, right? The euchromatin is the chromosome which regularly opens and replicates, but the heterochromatins rarely replicates, right? So these are heterochromatin and euchromatin system is actually read inside the cytotaxonomy which was given by Levin et al. It also shows similarities and dissimilarities among plants, right? The next one is chemotaxonomy. Student, chemotaxonomy is what? Taxonomy which is based upon chemical constituents of plants like DNA sequences is called chemotaxonomy. Chemical sequences, chemical constituents of plant, not the chemicals produced by the plant, right? Chemotaxonomy is different from phytochemistry. In phytochemistry, we discuss about the chemicals produced by the plant, like secondary metabolites, right? But in chemotaxonomy, we discuss about the constituent chemicals of the plant, like what is the amount of protein present inside this plant and this plant, what is the type of protein present, which type of amino acids are present in that protein, what is the configuration of that protein, alpha, beta, quaternary protein, primary protein, what is the type of chemicals, constituents of that plant, right? तो ये थोड़ा अलग है, इसको बिल्कुल इंक्लूड मत कीजिएगा फाइटोकेमिस्ट्री के साथ. ये केमिस्ट्री है, लेकिन ये किसकी केमिस्ट्री है? ये प्लांट की केमिस्ट्री है. तो एक्चुअली द प्लांट बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ केमिकल्स, दिस इज द स्टडी ऑफ chemotaxonomy, राइट? तो chemotaxonomy is biochemistry, genetic, the classification of taxonomy of organism based on differences and similarities in biochemistry that the organism base has in common. Taxonomy which is based upon chemical constituents of plant like DNA sequences, proteins, amino acids, nucleic acids, peptide, even peptide bonds,
which type of peptide bonds are present inside that protein, we are analyzing in chemotaxonomy. Even we are discussing about the RNA structure, different types of RNA structures. The RNA structure gives us a broad spectrum of evolutionary relationship among different organisms. So in chemotaxonomy, we are discussing about different types of chemical constituents of the plant, right? Chemotaxonomy based on chemicals constituents of chromosomes also. Merriam-Webster defines chemotaxonomy as the method of biological classification based on similarities and dissimilarities in the structure of certain compounds among the organisms being classified. अगर प्लांट की कीमोटैक्सोनॉमी हो रही है तो यहाँ पे ये चीज़ देखा जाता है स्टूडेंट कि इस प्लांट के अंदर कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि किस टाइप का इनमें आरएनए प्रेजेंट है, किस टाइप का इनका डीएनए है, प्रोटीन है तो क्या सीक्वेंस है उसमें अमाइनो एसिड का, क्या उनका कॉन्फ़िगरेशन है, अमाइनो एसिड कैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर में है, सेकेंडरी टर्शियरी बीटा प्लीटेड है, अल्फा है, हेलिक्स में है, या फिर what is the peptide bonds, how is the peptide bonds are arranged inside that protein, and in RNA also the types of RNA. In chemotaxonomy we read about only chemistry of the plant body, right? And then we classify similar plants into similar group based on their chemicals and dissimilar into different types of groups, right? So chemotaxonomy helps us and provide a deep information about the actual present sample in the plant, right? So last we will finish here about the different types of classification systems present in the plant, and now we are going to choose what are the criteria and what are the different characteristics on which the plant kingdom is based and classified. How algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperms are different from each other, right? Now we are going to discuss how plant kingdom is classified into Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. How these plants are classified into different categories. This is plant kingdom. Actually this classification represents the plant kingdom. This is plantae. These are the members of plant kingdom. How these are classified, categorized into different types of divisions. These divisions are Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm, right? तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट कि सबसे पहला जो हमने लिया है वो लिया है Embryophyta, non-Embryophyta. The category which belongs to non-Embryophyta. Embryophyta means embryo, phyta means plant and non means not. मतलब कि वो प्लांट का ग्रुप जिसमें एम्ब्रायो नहीं बनता हो. नॉन एम्ब्रायोफाइटा, वो प्लांट जिसमें एम्ब्रायो नहीं पाया जाता होगा वो कहलाता है थैलोफाइटा, जिनमें थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर होती है. मोस्टली इसमें अलगी आते हैं. थैलस मीन्स कि कुछ भी, कैसा भी स्ट्रक्चर इनका होगा, इस टाइप से कुछ भी इनका स्ट्रक्चर होगा. Thalloid structure means there is no proper division of root, stem, leaf like a structure, right? Thallus like body structure means no distinct feature of leaf, root and stem. तो नॉन एम्ब्रायोफाइटा में थैलोफाइटा आता है, और एम्ब्रायोफाइटा मीन्स जिसमें एम्ब्रायो हो ऐसे प्लांट, वो प्लांट्स जिसमें एम्ब्रायो होता होगा वो आता है एम्ब्रायोफाइटा में. तो एम्ब्रायोफाइटा में कौन कौन आ जाता है स्टूडेंट? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. इन सभी में एम्ब्रायो पाया जाता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा में भी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बाद यहाँ पे भी एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट. नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा एट्रैकियोफाइटा एंड ट्रैकियोफाइटा.
Atracheophyta and Tracheophyta. Tracheo, here is the word tracheo, A and tracheo and phyta. Three words are here. A means knot. Tracheo means vascular bundle, vascular system. Conducting system is called vascular system in plant, right? The vascular system is not present. Those plant belongs to Atracheophyta, in which vascular system is absent. That is, the conducting tissues are not present. Those plants are called Atracheophyta, means there is no xylem and phloem, right? This is Atracheophyta. The plant belongs to Bryophyta as well as Pteridophyta are placed in Atracheophyta category. The rest all three like Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm, all these belongs to Tracheophyta group, means they have tracheo, means they have vascular bundle, vascular system or conducting system, and these are those plants which have proper xylem and phloem tissue, means xylem and phloem tissue starts from Pteridophyta and then develops to Gymnosperm and finally to the Angiosperm group, right? So these three categories, three divisions of the plant kingdom belong to Tracheophyta. The next category we have chosen is Spermatophyta. Spermatophyta. Spermato means seed, not the sperm, right? Here you are not going to be confused. Students, Spermatophyta means seeds, right? A means knot, means few plants which do not have seeds in their life cycle belong to A Spermatophyta category, and few plants which have seed in their life cycle represent Spermatophyta. So plants from Thallophyta, from Bryophyta as well as from Pteridophyta belongs to A Spermatophyta group, in which seeds are not present, but the plants which belong to Gymnosperm and Angiosperm are put into the Spermatophyta category, in which they have seeds, right? The next one is Cryptogamous and Phanerogamous. Cryptogamous. Cryptogamous means non-flowering. Non-flowering. These plants do not have flower in their life cycle. They do not have flower, but these plants have flowers. They are Gymnosperm and Angiosperm. Flowering category. Flowering plants. Flowers in their life cycle keep them into the Phanerogamous group, but those plants which do not have flower in their life cycle belong to Cryptogamous groups, means non-flowering plant. The last I am going to discuss here few examples of these divisions. Thallophyta includes algae, Bryophyta include mosses, liverworts, hornworts, Machaicia, Anthoceros and many others, and the Pteridophyta includes fern, terrace, etc., which are found near the bank of the river or near stagnant water, right? And the second last is Gymnosperm, in which long heighted plants are there. These are Cycas, Pinus taxus and Ginkgo. And the last one is Angiosperm, which is again subdivided into two subdivisions. These are monocot and dicots. Monocots have single seeded plants. Their seeds have single cotyledon. They include maize, wheat, rice and
Few have double cotyledons, means two cotyledons. These are under dicot or dicotyledonous plant. These include grams or other types of pulses, etc. Right? These are dicots and these are monocots. So we finally concluded here in this lecture about two broad spectrum of plant kingdom. The first division of classification of angiosperms with respect to artificial classification system, then natural classification system, then phylogenetic classification system, and then modern technology of classification system, in which we have discussed about numerical taxonomy, cytotaxonomy and chemotaxonomy. And this segment we have discussed about the divisions and subdivisions of plant kingdom. These are Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. And finally to the monocots and dicots, right? In next lecture, students, we are going to discuss about Thallophyta or algae, right? Till then, take care. Thank you.